Good morning student, how are you? I hope you all are doing good. So in this video we are going to learn computer chapter 2, learn to use MS Access 2007. So we will read that introduction part. A computer is an electronic machine or device that possesses data to give information. People use computer to process data. Data simply refers to raw fact and figures. This may be in the form of numbers, alphabet, images, sounds, or a combination of these. Data needs to be processed to make it meaningful to useful. When data is processed for some meaning, it becomes information. So basically student, we have already know that computer is an electronic machine or device which is process data to give information. And student, what is data? Data means images, sounds, video or anything you want to store. This is called data. So data simply refers to the raw fact and figures. This may in the form of numbers, alphabet, images, sound और combination of these. जो हमारा डेटा होता है वो इमेजेस हो सकता है, साउंड हो सकता है, बहुत सारे फ़ोटोज़ हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं. Our next topic is database. A database is a collection of related tables with data is called database. The data remains in organized order in a database. A simple example of a database is the attendance register of your class maintained by your class teacher. It contains the name of each student of your class with their roll numbers. A personal telephone directory is also an example of simple database. So simply database means a collection of data. Okay, so students, the database meaning of database is a collection of data. As a simple example, एकदम simplest example लेते हैं हम database का. आपकी जो क्लास टीचर है, जब भी आप सब क्लास में आते हो तो आप लोग की अटेंडेंस लेती है ना. सो अटेंडेंस लेने के लिए क्लास टीचर्स को क्या करना पड़ता है? रजिस्टर मेंटेन करना होता है. सो वो जो उनका रजिस्टर है ना, जिसमें आपके नेम्स हैं और आपके नेम्स के साइड में आपका जो अटेंडेंस होता है, ये सब क्या कहलाता है? डेटा बेस. सम एडवांटेज ऑफ डेटाबेस आर easily retrieval of data, reduction of data inconsistency, easy manipulation of data, easy sharing of data, high data security. So these are some advantages of database. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एज अ डेटाबेस प्रिपेयर करते हैं तो उसके एडवांटेजेस हैं. And in this database you can perform various kind of operation on a database like creation, deletion, modification and updation. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A relational database is a collection of data items organized as a set of formally described table. So here relational database management system means a relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables. So सिमिलरली, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था डेटाबेस का, आपकी जो टीचर होती है, ठीक है, सपोज ये आपकी टीचर का अटेंडेंस शीट है. अटेंडेंस शीट पे यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट्स का नेम लिखा है और यहाँ पे डे के कॉलम्स बने होते हैं ना. सो अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल. सो जो हमारा डेटाबेस है वो इस तरह से टेबल के फॉर्म में क्या होता है? डिस्क्राइब्ड होता है. Data can be accessed by reassemble from these table in different way without a need to recognize the database table. The concept of relational database was given by E.F. Codd at IBM in 1970. So जो हमारा database का concept है उसे 1970 में E.F. Codd ने दिया हुआ था.
A relational database is a set of tables containing data fitted into some predefined categories. Each table, which is sometimes called a relation, contains one or more data categories in column. Each row contains a unique instance of data for the categories defined by the column. सो स्टूडेंट्स, इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल होते हैं उनके बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं. और ये रिलेशन फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि उन दोनों टेबल है, उन दोनों टेबल का जो कॉलम होता है, ठीक है, उस कॉलम का एक जो डेटा हो वो दोनों में क्या हो, सिमिलर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके students detail and your report card. So students detail और report card two different type of database है, tables है. तो इन दोनों के बीच में relations कैसे बनेगा, जब आपका रोल नंबर दोनों में लिखा हुआ हो. सो यहाँ पे एक कॉलम आपकी रोल नंबर वाला कॉलम सेम होगा जो कि दोनों डेटाबेस पे लिखा हुआ होगा. ओके. नाउ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. All objects of a database are stored in a single file. These are managed through the database window. Let us discuss the main object of a database. All objects of a database are stored in a single file. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं. एंड दीज आर मैनेज थ्रू द डेटाबेस विंडो. सो लेट अस डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस. टेबल. अ टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ डेटाबेस. सो मैंने आपको अभी भी बताया रिलेशनल मैनेजमेंट डेटाबेस जो होता है, ठीक है, वो इस तरह से ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना हुआ डेटा होता है. इसे ही कहते हैं हम टेबल्स. A table is a part of database where the actual data stored. MS Access store the related entires in its row. This row is called a record. So database system में डेटाबेस इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना हुआ डेटा होता है. इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम डेटा प्रिपेयर करते हैं. इन MS Access स्टोर द रिलेटेड एंटायर्स इन इट्स रो. ठीक है, और जो भी हमारा डेटा होता है वो कहाँ लिखा होता है, इस रो के अंदर. यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा है, डेटा कहाँ पे लिखा होता है, इस रो के अंदर लिखा होता है. दिस रो इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड. और ये क्या कहलाता है, जो ये रो है वो कहलाता है रिकॉर्ड. ईच टाइप ऑफ डिटेल इन अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम नोन एज अ फील्ड. एंड जो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये कॉलम है और ये आपका रो है. और ये जो आपका कॉलम है, ये कॉलम कहलाता है फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल the name of all student of your class can be stored in a one field with the field name as a name and all the data entire under the field name, age, address together from the record of a particular student. So here is a example. This is the students record. तो स्टूडेंट रिकॉर्ड पे यहाँ पे मैंने n लिखा है. n मीन्स नेम एंड a मीन्स होता है एज. ठीक है, सो n मीन्स नेम. नेम इज़ अ फील्ड. हियर नेम मीन्स नेम इज़ अ फील्ड. एंड इसके नीचे हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल रिया, सोनल. सो रिया, सोनल इज़ अ रिकॉर्ड एंड हियर नेम इज़ फील्ड. सिमिलरली हियर एज आई हैव रिटन. सो एज इज़ अ फील्ड एंड जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स का एज हम यहाँ पे लिखेंगे 11, 12. सो वो 11, 12 क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड, है ना. सो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड एंड नेम एंड एज इज़ अ फील्ड. नाउ query. A query is used to extract information from a database. The output of a query is recorded or a group of records that fulfill a certain condition. An example of a query is to get the record of the student with roll number 32. So here query means inquiry. ठीक है, सपोज आपको ऐसे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका रोल नंबर 32 है, तो आपको वहाँ पे क्राइटेरिया देना होता है. और जैसे ही आप ये क्राइटेरिया देते हैं तो आपके उस रोल नंबर 32 स्टूडेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सिर्फ वही डिस्प्ले होगी, अदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले नहीं होगी. नेक्स्ट इज रिपोर्ट.
Report is just as a forms are designed to be on screen, report are designed to be printed. रिपोर्ट्स मीन्स आपने जो भी डेटाबेस रेडी किया है, ठीक है, डेटाबेस रेडी किया, उस डेटाबेस की फाइनल हार्ड कॉपी कहलाती है रिपोर्ट, जिसको आप प्रिंट करते हैं एक पेपर पे. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन टॉपिक MS एक्सेस. इससे पहले आपने यूज़ किया है बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सिमिलरली ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कॉरपोरेशन के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ एक ऐप है जिसे कहते हैं MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. Microsoft Office Access is a popular relational database management system. It is one of the application software of Microsoft Office package. सिमिलरली स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने पढ़ा है MS ऑफिस के अंदर आपने पढ़ा MS वर्ड, MS एक्सेल, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ एक एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए. So in this video we will read about it. MS Access is a widely used by individuals having small scale business within departments of a large corporation and also used by hobby programmers to create customized system for handle the creation and manipulation of data. It is a development environment used to create computer database for the Microsoft Windows family of operating system. सिमिलरली इसे बड़ी बड़ी बिज़नेस कंपनियों के थ्रू यूज़ किया जाता है अपने डेटा को हैंडल करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल में यूज़ करते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, ठीक उसी तरह से MS एक्सेस का यूज़ किया जाता है लार्ज कॉरपोरेशन कस्टमाइज सिस्टम फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. बहुत मतलब वाइडली इनको बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस में हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है, तो हमारी ज़रूरत भी क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है. सो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं. उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007. So let's see how to start Microsoft Office Access 2007. Let's see starting MS Access 2007. So सिमिलर स्टेप है जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स देखा था. स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007. फिर आपको इस तरह से विंडो दिखेगा, ठीक है. जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से एक विंडो दिखाई देगा. So student, in my next video we will discuss about how to create a database. So आप लोग यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड करिए. Then in my next video we will discuss about how to create a database in a MS Access.